Hi my dear students, myself AB sir, फिजिक्स फैकल्टी। बेटा बहुत सारे बच्चों को बीट्स के ऊपर क्वेश्चन बनाना नहीं आता है, तो बच्चे बोले कि कोई शॉर्टकट्स है क्या, कोई ट्रिक है क्या इसको बनाने के लिए। तो आज के दिन मैं बीट्स का टॉपिक लेकर आया बेटा। इफ एनी ट्यूनिंग फोर्क इज filed or waxed, definitely there will be that change of the frequency. If known frequency is there, to find out that unknown frequency, this method helps you to do the unknown frequency problems. This is very easy way. Beats, but a beats is nothing but difference between the two frequencies is nothing but beat frequency. Difference between the two frequencies is nothing but beat frequency. Let us take two tuning fork. One frequency is N1, one of the frequency is N1, another one of the frequency is N2. In that one, in a question, it is given that one tuning fork frequency he give and another tuning fork frequency you have to find out by using this method. Let us take N2 and N1 are the frequencies of two tuning forks. But the difference between the two tuning fork should not be more than 10. Should not be more than 10. Reason behind that, we know that the persistence of hearing that sound is less than 10 seconds. Based on that one, the difference between the two frequencies should not be greater than 10. Let us take one tuning fork whose frequency is 250 Hz, and he given that unknown frequency value is not given, but it is given that difference between the two frequencies is equal to 6 ऐसा बोल के बताया है। The beat frequency is 6 and one frequency of the tuning fork is given and he asked to find out the frequency of the unknown tuning fork. तो ऐसा करने से हमने बताया ये डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। अब क्वेश्चन ये है सर ये बीट्स कैसे प्रोड्यूस होगा और हमें कैसे पता चलेगा। बेटा देखो, अगर तुम्हारे वॉच में ऐसा साउंड आपने सुना है टिक 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 ऐसा बोल के अगर तुमने साउंड सुना है, तो ये जो टिक टिक बोल के सुनाई दे रहा है ये तो मैक्सिमम साउंड है। The maximum intensity of the sound is called as waxing. Waxing. तो टिक और टिक के बीच में जो गैप रहता है, साउंड सुनाई नहीं देता है, that is minimum frequency of that sound, is called as waning. Waning. The difference between the two frequencies called as waxing and waning. Waxing and waning. Waxing and waning is called as beat frequency. Beat frequency. What is beat frequency? The difference between the two frequencies is said to be the beat frequency. Okay. Now here the difference between the beat frequency is given as 6. One tuning fork value known, another tuning fork value I don't know. Maybe let us take this is a known और ये नोन का वैल्यू है 250 हर्ट्ज है, और ये आकर अननोन फ्रीक्वेंसी है। ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी है इसका वैल्यू मोर देन 250 या लेस देन 250 होगा। क्यों? द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज इन द क्वेश्चन इज गिवन डेल्टा एन इज इक्वल टू N2 डिफरेंस ऑफ N1। इसका मतलब डेल्टा N इज इक्वल टू N2 माइनस N1 तो हो सकता है, या डेल्टा N इज इक्वल टू N1 माइनस N2 तो हो सकता है। ओके ना। डेल्टा N दिया गया है कितना 6, N2 नहीं मालूम, N1 250 दिया गया है, तो इससे N2 इज इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस 250 आएगा। दैट मीन्स यहां का वैल्यू आकर 256 होगा। अगर ऐसे निकाले N2 को निकाले, N2 को इधर भेज दिया, N2 इज इक्वल टू N1 माइनस डेल्टा N, दैट मीन्स 250 माइनस 6 हुआ, that is equal to 2
244 हुआ। दैट मीन्स 250 में से 6 निकाल दिया तो 244 हुआ, 244 हुआ। ओके, मे बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉन्ग मोर देन 250 या लेस देन 250 होगा, बट एग्जैक्टली नहीं मालूम है कौन होगा, बट हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? सी है बेटा, इसको बताने के लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया। let us take I am giving here some clear explanation about this. Let us take frequency of the tuning fork can be calculated by using 1 by n is equal 1 by 2l square root of t by m। बेटा बताओ मुझे, अगर एक ट्यूनिंग फोर्क को मैंने वैक्स लगा दिया तो मास ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क बढ़ जाएगा। एज द मास इंक्रीजेस तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क डिक्रीजेस। अगर मैंने यहां पर कुछ वैक्स को लगा दिया है तो क्या होगा? मास ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इंक्रीज होता है। कैसा होता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था एक ट्यूनिंग फोर्क का वैल्यू लिया था। क्या लिया था ट्यूनिंग फोर्क का वैल्यू मैंने? फॉर एग्जाम्पल एक आकर मैंने कंसिडर किया था 250 बोल के कंसिडर किया था 250, और एक का वैल्यू लिया था मैं 255 हर्ट्ज बोल के लिया था। ये N2 है, ये N1 है। एग्जाम्पल में बता रहा हूं मैं, N1 का वैल्यू दिया गया है, N2 का वैल्यू दिया गया है। बताओ डिफरेंस बिटवीन द टू ट्यूनिंग फोर्स क्या होगा? डेल्टा N इज इक्वल टू N2 माइनस N1। डेल्टा N इज इक्वल टू 255 माइनस 250 इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी कितना है? 5। अब मैं क्या बता रहा हूं, ये ट्यूनिंग फोर्क को मैंने वैक्स लगा दिया। बेटा वैक्स लगाने से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है पहले 250 था, अब क्या बनेगा? 250 के बदल 245 हुआ समझो, 245 हुआ समझो। अब डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी निकालो। N2 माइनस N1, N2 था 255 माइनस N1 था 245, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना है यहां पर? 10 हर्ट्ज है। दैट मीन्स as the mass increases, frequency of the tuning force decreases, but beat frequency increases। अगर मैं ऐसा बताया, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने फाइल किया है, समझो टू ट्यूनिंग फोर्क है मेरे पास, वन वैल्यू इज 255 हर्ट्ज, अनदर वैल्यू इज 250 हर्ट्ज। ऐसा मेरे पास टू ट्यूनिंग फोर्स है। I name this one as N2 and N1. Difference between the two tuning force is equal to N2 minus N1 is equal to 5 hertz. हमने बताया as it is filed, ये तो वैक्स के लिए था, और ये filed बोले तो घिसना है इसको। If it is filed, तो mass somewhat it is going to be reduced, mass reduce होगा। बेटा mass reduce हो तो क्या होगा? If mass reduced, frequency increases. Frequency of the tuning fork increases. As the frequency increases, then beat frequency is going to be decrease. देखेंगे हाँ या ना। अगर मैंने इसको फाइल किया है तो इसका फ्रीक्वेंसी स्लाइटली इंक्रीज हुआ समझो, 253 होया समझो। अब इसका डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 255 माइनस 253, तो डिफरेंस आया मुझे 2 हर्ट्ज। That means as the mass decreases, frequency of the tuning fork increases and beat frequency decreases. तो ये था small introduction about this one, और उसके बाद unknown frequency को कैसे निकाल सकते हैं? Let us take, मैंने एक शॉर्टकट निकाला है। इसके लिए आपको एक ही वर्ड यूज करना है, विल बोल के यूज करना है बेटा, विल, WIL, विल। एडिंग वैक्स, बीट फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी, आंसर आकर लोअर फ्रीक्वेंसी लेना है। नेक्स्ट W, इसका रिवर्स, इंक्रीज का ऑपोजिट डिक्रीज, लोअर का ऑपोजिट अपर, सेम एडिंग वैक्स अगर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ है, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ तो टेक अपर फ्रीक्वेंसी, टेक अपर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वैक्स ऐड किया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी जैसा है वैसे ही है। एडिंग वैक्स सेम फ्रीक्वेंसी वी ऑब्जर्व, सेम फ्रीक्वेंसी। तो इसको याद रखने के लिए देखो ये W है ना, तो U बोल के याद रखो, टेक अपर वैल्यू, टेक अपर फ्रीक्वेंसी। इसका रिवर्स, यहां तक वैक्सिंग हो गया फाइल F, अगर मैंने फाइल किया है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है, फाइल किया है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है, यहां L लिया था ना, इसका ऑपोजिट लो U। फाइलिंग बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, टेक अपर वैल्यू, टेक अपर वैल्यू, अपर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इसका रिवर्स, अगर फाइल किया है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ है तो टेक लोअर वैल्यू, फाइलिंग बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ है बेटा, फाइलिंग इफ आई गेट सेम फ्रीक्वेंसी, देखो इसका ऑपोजिट लो, फाइलिंग सेम फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो टेक लोअर वैल्यू, लोअर फ्रीक्वेंसी। तो ये था ट्रिक। देखो इसको कैसे करते हैं, सीरियल नंबर, दिस इज नॉन फ्रीक्वेंसी, इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी, इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी, फाइनल बीट फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट अननोन वैल्यू, अननोन फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 5 6, बट नॉन फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज लिया, समझो पूरा 250 हर्ट्ज, ऐसा पूरा का पूरा एक ही फ्रीक्वेंसी लिया मैंने, नॉन फ्रीक्वेंसी। और इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल 6 8 7 सम 5 और 7 और 4 ऐसा बोल के लिया है। ऐसा लिया है, थोड़े वैल्यूज ऐसा लिया है मैंने। ओके, फर्स्ट 3 वैल्यू को मैं वैक्स बोल के लेता हूं, वैक्सिंग, एडिंग वैक्सिंग। नेक्स्ट 3 वैल्यूज को मैं लेता हूं फाइलिंग। देखो बेटा अब कैसे करना है, देखो ये नॉन फ्रीक्वेंसी है, इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी है। अगर मैंने ट्यूनिंग फोर्क को वैक्स ऐड किया है, एडिंग वैक्स, अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है, एडिंग वैक्स बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो टेक लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू बोलो तो 250 में से 6 निकाल दो, 250 में से 6 अगर निकाल देते हो तो 244 है,
अननोन फ्रीक्वेंसी आएगा 244 हर्ट्ज आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं वैक्स ऐड किया है और मैंने नोटिस किया है बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ है, तो टेक अपर वैल्यू। अपर वैल्यू बोले तो 8 + 250 अगर ऐड करता हूं तो 250 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट, अगर वैक्स केस में बीट फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं हुआ है, सेम रहा तो अपर वैल्यू, दैट मीन्स 250 + 7 बोले तो 257 हर्ट्ज। वही केस फाइलिंग में अगर लिया तो ये नॉन फ्रीक्वेंसी है, ये इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी है। आफ्टर फाइलिंग इफ आई गेट दिस फ्रीक्वेंसी, आई नोटिस दैट इंक्रीज हुआ है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ तो क्या करना है, अपर फ्रीक्वेंसी लेने का, दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करो, 255 हर्ट्ज। नेक्स्ट, ये अगर नॉन फ्रीक्वेंसी है तो इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी से फाइनल बीट फ्रीक्वेंसी आफ्टर फाइलिंग डिक्रीज हुआ है, फाइलिंग डिक्रीज हुआ तो टेक लोअर वैल्यू, दैट मीन्स 250 में से 7 निकाल दो, 250 में से 7 को निकाल दो, 3 4 2 243। और मैंने नोटिस किया है फाइलिंग करने के बाद भी सेम फ्रीक्वेंसी आया है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी 250 में से 4 निकाल दो, 250 में से 4 निकाल दो, ये 6, ये 4, ये 2, 246 हर्ट्ज। So this is my short trick. I hope you can understand this one. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, so that I can do more videos. All the best.